तो दोस्तों ये है ईसीटीवी नगर और हम इस समय हैं पोडिशलूर में और यहाँ पे हमारे कस्टमर श्री अशोक कुमार जी हैं जिन्होंने कि अपने घर पे शार्क लगाया है एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलेशन हैपेंड इन साउथ इंडिया। तो चलिए देखते हैं, आइए। Guys, we are here with the Mr. Ashok Kumar right now, and we'll take the short introduction of Mr. Ashok Kumar. Sir, welcome in Loom Solar. Myself Ashok, and I'm residing in Chennai. Especially this place is Podichelu. It is near Pammal, Pallavaram. It's a southern part of Chennai. Sir, what is the position of electricity in your area? In occasionally we have complete blackdown for a day itself. So those things are real issues which we faced in this location. And apart from that, I used to have heavy bills also on summer. So those are just more pressing points to go for solar. Sir, we want to know that how you came to know about Loom Solar. Yeah, I was in need of solar options, so I just browsed the net as well as went through videos in YouTube. Then I found there is an option to go for, and there I found Loom Solar. So then I just went and searched in internet to see like who is a nearby Loom Solar vendor or else distributor who can address my issues. Then I come to know about Balakrishnan. Then I called him. Then it all eventually went in installation of 3.5 kVA. How you decided to install 3.5 kilowatt? Addressing that we can have fans and at least one AC run working. But eventually what happened is we had a 1.5 kiloton AC, inverter AC. That will not work when you have 2.5 kVA. So eventually we upgraded to 3.5. So now two ACs are working at one shot, and fans and everything are going fine, even at the daytime and as well as in the night time. Sir, we want to know that what all things are included in your 3.5 kilowatt solar system. Panels, right? 8 panels, and that is called Shark type, right? We call it as Shark type, and 7.5 kVA inverter, and 8 batteries together, and installation. Then you have a stand and everything to support it, high-rise stand, okay, and those are things I've got it. So we also want to know that what was the total cost of this system? The cost is around 3.8, including installation and everything. This is the first installation happened in south of this Shark panel, and this is a 3.5 kilowatt solar system. Here we can see 150 Ah 8 batteries are there, and one 7.5 kVA inverter. Sir, what all appliances you are running in these days through the solar panel? Around 5 to 6 fans running, not most of the times, but occasionally 4 or 5 at the moment, and a washing machine, then a refrigerator, and 2 inverter ACs. One is 1 ton and another one is 1.5 tons. So for experimental purpose, we just ran that both ACs at a time, and it worked properly. But in usual household, it will be a refrigerator, kind of AC of 1.5 tons, a TV, a LED TV, and at least 3 or 4 fans at a time, and lights obviously, water purifier. Then it's something like you run almost like all these equipments. 3 laptops will be in work. So all these things are satisfied. It is utilized by solar electricity. Why you choose the off-grid solar system? I need electricity 24/7. Okay, and I explored both options on-grid and as well as off-grid. But the pain point with on-grid is it will be on only when electricity is on, and whatever excess you produce through your panels will be sent back to EB, and they buy it at a very cheaper price than what we produce, and as well as the cost of investment I have put in. So I went for off-grid so that I have 24/7, and to be more precise, I need to run ACs, okay, and off-grid with a good inverter, I felt that's a good choice to go for. So what do you do for the maintenance of these panels, sir? In case of panels, right, we used to clean at least twice in a month so that dust and other poofs, bird proofs, right, could be eliminated from the panels. So that's what we do. But there is another piece when you use in batteries, right?
So every 3 or 4 months, you need to fill in with distilled water. That is something we haven't done so far, but we are expected to do so. Sir, have you faced any problem during the installation? It was smooth. It took almost 1.5 days, but it was really smooth. It was done by Mr. Balakrishnan, who is a nearby dealer, and he has done a good work on that part. Sir, your message to our viewers. So I would recommend to go for solar. That is because you can cut down your dependency on electricity, EB board, and as well as you won't be impacted on EB power cuts, full down maintenance, and full power blackout. And even in case of natural calamities like flood and other parts, your solar will work as it is. I would recommend to go for off-grid so that you don't depend on EB electricity board itself. So I prefer that solar is the only solution which is pollution free, and that's the only solution to go for. So go for solar, be happy, live a healthy and a happy life, leave the environment clean. Thank you. Ashok Kumar ji, you gave us your precious time. Thanks for that. Thank you. I'm also glad to give my thoughts, and thanks for the opportunity. Thank you. सर, स्वागत है आपका. थैंक यू. सर, ये ऑर्डर कैसे मिला आपको? वेबसाइट से मिला है मेरे को ऑर्डर. यही ऑर्डर एक कस्टमर ने पूछ रहा था मेरे को एसी चलाना है, 2 एसी चलाना है, बाकी घर पे जो लाइटिंग लोड है सब कुछ चलाना है, ऐसे बोला था. मैंने इनको सजेशन किया था 7.5 किलोवाट की इन्वर्टर लगा के और शार्क लगा के, लूम सोलर की शार्क लगाने के लिए बोला था. 3.5 किलोवाट की पैनल लगा हुआ है इसमें. अभी अच्छा काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, दिन में भी काम कर रहा है. एसी भी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं इसमें अंदर. ओके. तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उनको एसी चलाना था, इसलिए उन्होंने 3.5 किलोवाट का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है. सर, ये हाई राइज स्टैंड लगाया आपने, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर, ये क्योंकि 8 पैनल लगाया हुआ है ना, ये नीचे लगाएंगे तो हमके जो चिप जो पार्ट है ये यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसी के कारण के हमने क्या लगाए थे, थोड़ा हाई राइज बढ़ा दिया. ये नीचे यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्होंने यूज़ कर सकते हैं. शाम का टाइम में बैठ सकते हैं नीचे, सब कुछ अच्छा है. देख लो, इतना हाइट है, 6 फीट की हाइट हम लगाए हुआ है इसमें. हम देख सकते हैं यहाँ पे हाई राइज स्टैंड का यूज हुआ है, और हाई राइज स्टैंड की जो खूबी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 7 इंच है, और मैं इसके नीचे से किस प्रकार आराम से निकल पा रहा हूँ. तो दोस्तों, यहाँ पे हम ज़्यादा हाइट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट दिया तो पैनल उड़ने का खतरा बना रहता है, इसलिए ज़्यादा हाइट भी नहीं दे सकते हैं. और ये जो आप देख रहे हैं, ये कस्टमर की हाइट के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है. तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतना मजबूत आरसीसी किया हुआ है, और ये जो 6 के 6 स्टैंड्स हैं, इनको इतनी मजबूती से आरसीसी किया गया है. इसको इतना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको जैसे कि मालूम होगा कि साउथ में साइक्लोन्स भी बहुत आते हैं, और साइक्लोन में हमारा पैनल्स उड़ ना जाए, इसके लिए इसको बहुत मजबूती से फिक्स करने की ज़रूरत होती है. और ये देखिए कितना मजबूती से इसको यहाँ पे फिक्स किया गया है ताकि हमारा पैनल उड़े नहीं. तो सर, आप हमें बताएंगे इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया आपने? हाँ जी, ये है ना 8 पैनल है. 8 पैनल पे 2 स्ट्रिंग बना दिया हमने. 4 पैनल सीरीज करके लगाया हुआ है. 2 स्ट्रिंग लगा के उधर डिजली भी लगा के लगा हुआ है. तो 4 पैनल इस तरह से और 4 पैनल इस तरह से, ये आपने स्ट्रिंग्स में कनेक्ट किया है 2 स्ट्रिंग में. हाँ जी. ओके. इनके लिए फ्यूचर में एक्सटेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है हमने. नीचे और भी एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं इसमें. ये लूम सोलर के पैनल लगा हुआ है, शार्क लगाया हुआ है. ये ऑफ कट सेल्स है, इसमें 9 बस है. ये हाई एफिशिएंसी मॉडल है, अच्छे से काम कर रहा है. इनमें 20 यूनिट आ रहा है, इसमें 20 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहा है. इसमें अच्छे से काम कर रहा है. ऑलमोस्ट इनके घर पे ईवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है. ग्रिड वाला बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इसमें. तो सर, आप हमें बताएंगे इस यहाँ से वायरिंग वगैरह किस तरह से कर रखी है आपने? ये लगाए थे हमने 4 पैनल करके. ऊपर 4 पैनल है, 1 2 3 4 पैनल है. ऊपर 4 पैनल है. हाँ, इसमें 4 पैनल नीचे है, जो सबको 4 पैनल सीरीज बना के जो पाइपलाइन के अंदर वायर घुसा के उधर लगाए है सब कुछ. कोई वायर तार बाहर नहीं दिखेगा इसमें. तो हम देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने ये पाइप के थ्रू जो है वायर निकाली है, और 2 स्ट्रिंग में इसको यहाँ से निकाला है. ये आप देख रहे हैं पाइप आ रही है सामने से, और ये पाइप इन्होंने यहाँ से इधर दीवार में दिया है. और ये कॉपर के तार है. ये इधर से ये इन्वर्टर की जा रहा है, ये नीचे से इधर से आके ये पाइप में लगा के
यहाँ पे जाके नीचे तक जा रहा है। एक हमने ग्राउंडिंग करके रखा हुआ है इसमें विथ पैकिंग, आप केमिकल के पैकिंग लगा के हमने ग्राउंडिंग करके रखा हुआ है। इसमें कॉपर रॉड लगा हुआ है। इसमें अर्थिंग तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सोलर के लिए, क्योंकि सोलर में हाई वोल्टेज होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। जिस टाइम लाइटनिंग हो रहा है उस टाइम भी होता है, बाकी जो हैवी वोल्टेज भी निकलता है कभी टाइम, उस टाइम जो हमारा इन्वर्टर्स है वो अफेक्ट हो सकता है। इसी को रुकाने के लिए हमने ये अर्थिंग बहुत ज़रूर पड़ता है। इसको ज्वाइन करते हैं डीसीडीबी में। डीसीडीबी में एक एसपीडी होता है, वो सब जो प्रोडक्ट पड़ता है। ये हाई वोल्टेज जिस टाइम आएंगे उस टाइम उधर जाके हीट करके एक ग्राउंडिंग कर देता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 150 AH की जो है 8 बैटरीज हैं, 4 बैटरी ये है, 4 बैटरी नीचे है, और ये यूपीएस है। ये जो यूपीएस है ये यूपीएस 7.5 kVA का है दोस्तों। ये है डीसीडीबी है। हमने जो 8 पैनल लगाया था, 4 स्ट्रिंग करके लगाया था, सीरीज बना के लगाया था। अभी क्या कर रहा है वो हमने फर्स्ट और सेकंड में अभी लगा दिया, बैलेंस एक बाकी है, ये बाद में हमने यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचरली और भी 4 पैनल लगा सकते हैं। जितना पैनल लगाना ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं इसमें, अप टू 5 किलोवाट तक इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसे 7.5 का किलोवाट का केवीए का इन्वर्टर है, इसमें आउटपुट 6 किलोवाट की आउटपुट ले सकते हैं इसमें। ये है 7.5 kVA का इन्वर्टर। आज ये और स्पेसिफिकेशन इसमें देखेंगे। ये स्विच ऑन आ रहा है और ट्यूबलर बैटरी है, ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसपीजी लगा हुआ है, इसके स्पेसिफिकेशन बाद में बताता हूँ। ये 7.2 यूनिट्स अभी तक प्रोड्यूस किया हुआ है। ये लगा के 1 महीने हो चुका है, तकरीबन 500 तक यूनिट जनरेट कर लिया। ओके। अभी जो एसपीजी का मतलब मैं बोलता हूँ, पहले सोलर में काम करेगा, उसके बाद में बैटरी में काम करेगा। बैटरी में 40% रख देगा, फिर उसको जोड़ के उसके बाद ईवी में शिफ्ट हो जाता है। ये 40% इसलिए यूज़ होता है, हमने जिस टाइम करंट नहीं है, ग्रिड में कनेक्शन नहीं है, ईवी नहीं, तो उस टाइम यूज़ करने के लिए। और 8 बैटरी है, 8 बैटरी में भी स्टैंड लगा के बनाया हुआ है। 4 बैटरी नीचे, 4 बैटरी ऊपर, और ये तार है, बहुत मोटा तार है, 25 स्क्वायर mm है। 25 स्क्वायर mm। ओके। सो 25 स्क्वायर mm का तार लगाने का क्या जरूरत पड़ता है? क्योंकि लोड हैवी है ना, 6 किलो, हाँ, इसलिए। ओके, 6 किलोवाट होता है। हाँ जी, हाँ जी। 6 किलोवाट लोड के लिए हमको 25 mm का वायर लगाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, जिन्होंने कि अपने घर पे 3.5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया है। और अशोक कुमार जी दक्षिण भारत में हमारे पहले कस्टमर हैं जिन्होंने अपने घर पे शार्क लगाया है। और ये हमारे बालाकृष्ण जी के 100वें कस्टमर हैं। बालाकृष्ण जी अभी तक दक्षिण भारत में 100 इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु में, चेन्नई के अंदर 100 इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।